Very interesting. And thank you guys for coming. You're from which school? JK. Okay, okay. So yes, we can start. Yeah. Okay. So good evening and welcome to Open Canvas Kala ke Kisse with Cutting Chai. Chai will be a little bit later after the talk ends. So I would like to introduce you to our artists, to our speakers who are present here. First of all, I would like to introduce you to these two artists who are abstractionists, Yogesh Patil and Ganesh Apraj. So they are representing the Turiya group, which was found in 2017 by artist Umesh Patil, who is also here with us right now. Basically, the word Turiya means a stage of meditation for artists, which is somewhere formless and eternal. So the efforts of artists at Turiya is collaborative and informative most of the times, and what they aim at doing is mostly they work towards betterment of their own work, coming into different ideas, exchanging of ideas, developing those ideas, developing work, and along with that they work towards creating an aesthetic vision for the viewers. So here we have artist Ganesh Apraj with us, who is very good with his conceptual thought, using vibrant colors in his paintings, in his work, and directly working on walls as well. And artist Yogesh Patil, who works in a minimalist forms with lines, dots, and his work is very sensitive, which speaks a lot in a very minimalist way. And further, I would like to introduce visual communication designer Kanchan Dhankani, who has conceptualized this entire exhibition that you are seeing, which is interactive for you. You can scribble, doodle, and do a lot more. So Kanchan, as I said, is a visual communication designer, founder and a principal designer of Kanchi's, her studio. She has done the packaging design for big firms like Tata, Margo, Henko, Love and Lovely, Dove, and a lot more. So now I would like to introduce Kanchan to come ahead and take forward this talk. Sure. Thank you so much for the introduction. That was sweet of you. Should I be here? Yeah. Okay. So, I'll firstly talk a little bit about what is this experiment about? Why are we here? What are we seeing? It's unlike any other art gallery. What's happening here? So the base is there was an experience when I was in Germany where I had to take some classes in German, which was totally disconnecting. ये भाषा मुझे आती नहीं है. करना क्या है क्लास में? So I used to doodle. So first I used to doodle with a little guilt. Then I said, okay, this is my plan. This is what I'll come here daily. I'll come with a plan. I'll get some papers and scribble freely. So the 2 hours of the lecture used to be my lovely time of being in my daydreaming world with pencil in my hand, scribbling aimlessly, not that I had any plan. ऐसे ही चल रहा था. फिर then came to us the topic that we had to do some thesis, do some project. So I said, no, this is my topic. Now I'm exploring this and this is where I am. This is not what I'll get in Bombay, where there is so many other things which will distract me. यहाँ पे pure play me, myself चल रहा था. So daydreaming became the topic. And then I started thinking from my logical mind. पहले तो ऐसे ही doodles चल रहे थे. तो अभी logical mind से कि how to present this as a form. If we have to say daydreaming is a form, what it could be. And जैसे वहाँ पे doodles है, उस doodles के अंदर मैं forms ढूंढ रही थी जो connected हो. जैसे हमारे thoughts एक thought से दूसरे thought से connected रहते हैं, but बहुत weak link रहता है. कोई खास connection इतना होता नहीं है. तो एक link से दूसरे link से दूसरे link से, पर हाँ, जहाँ से start करते हैं वहीं complete करते हैं. We have to be in present back somehow, so it forms a loop. And those are the series of it because they are very dynamic. They can't be explained in one particular logo or something. So very dynamic. So काफी सारे loops और काफी सारी forms बनाए और that was one part of it. तो ये हो गया. उसके बाद वही same experience को किसी को अगर in person you have to give that experience of push and pull. So it was more about creating a space. Okay, in this particular space you will feel the push and pull of thoughts. So these bands that you see up, ये काफी stretchable material है. In fact, इतना stretchable है that we took it from there, the starting door, to bring it back from वो जो छोटा सा दिख रहा है वो window से वापस बाहर आ रहा है. It's coming and forming a loop as well. So it's a very stretchable material and very reliable. And I tied these as an expression of thoughts coming from all directions. सब दिशाओं से thoughts आ रहे हैं, कुछ हल्के आ रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. So वो proportion difference है. And these are my friends, by the way. इनके साथ मैं पढ़ती थी. इनको मैंने invite किया.
they usually wear this stocking material which is very slippery anyway, so very easy to slide and glide and experience this push and pull जो इसके अंदर entangle होके म्यूजिक लगाया था, मूड सेट किया था, and I was just a silent observer with a camera. And after that, whenever I felt it right, I felt that they have left the conscious mind, is when I made some clicks. Now this is it, that was the plan. And when I set it up an exhibition there, which was in the fire escape, because it was my emergency escape, so I chose fire escape to be like the place to be my exhibition spot. वहाँ पे लगाते वक्त मुझे ये strike हुआ that there are some connections building. Now what are those connections? The connection is that the form that I did as a first exercise is matching somehow to a form that's clicked, and it's completely unexplainable how it happened. It just happened. So these are just few of them that I have displayed here, but there are a series of, I think, around 20-30 such photographs. उनके हर एक के resembling forms, कहीं ना कहीं resemble होते हुए forms दिख रहे थे. So that became an interesting thing to see कि ये हुआ कैसे पहले तो. How is it that my mind knew it, or is it the link that I'm building now? कुछ लोगों को लगता है पहले क्लिक किया गया था और फिर फॉर्म बनाया था, तो ऐसा तो नहीं हुआ था. My process, I totally know how it went, but here we are curious to see कि is there something in our mind already, एक छवि बनी रहती है जो बस वेट कर रही है to take a form in physical space through either photographs, medium, it doesn't matter, photograph or doodle or something, it's just waiting to come out. So that is what we are exploring here. And the topics that we are going to talk about here also is there any experience like that which has happened to you before? So firstly, I would like to ask you about your process of working. Generally, what inspires you, what's usually your mood, and how do you do it? And then we can transfer into this kind of conversation. प्रोसेस, पेंटिंग प्रोसेस के बारे में ही स्टार्ट करते ठीक हैं है. या पहले ग्रुप के बारे में और फिर ग्रुप के बारे में प्लीज. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज ग्रुप बीइंग इन टुडेज टाइम इज अ वेरी यूनिक थिंग. यू कैन एक्चुअली इंस्पायर द यंग बड्स टू फॉर्म द ग्रुप्स. स्टार्टिंग वहां से करेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है. से हम लोग बैचलर कर रहे थे रहेजा में, और पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कॉलेज में नहीं कर सकते थे, या कॉलेज लास्ट ईयर में थे हम लोग, और हमें कुछ 3 साल में जो कुछ मिला है, और लास्ट ईयर में आके कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ रह गया है इन 3 सालों में. कुछ स्टडी करने का रह गया है, कुछ चीज़ें समझ नहीं रह गई है. तो ये एक ख्याल था, ये सब कैसे सॉल्व करेंगे. तो उमेश है हमारे ग्रुप में, उमेश के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते थे कि हे आता कळायला लागले, ते त्यावेळेला कळालं असतं तर आपण नक्कीच अजून चांगला इम्प्रूव्हमेंट करू शकलो असतो, असे आमची डिस्कशन व्हायची. फिर ये कैसे होगा आगे जाके. सो फिर हम लोग एक साथ जुड़े, कुछ एक साथ जुड़ के कुछ करेंगे, ये सब डिसाइड कर दिया. मिलते थे गैलरी में या कुछ इवेंट में, ऐसा कुछ मिलते रहते थे. फिर बाद में डिसाइड किया कि कुछ तो एक ग्रुप का नाम होना चाहिए और ग्रुप के मेंबर्स होने चाहिए, तो ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी. नहीं तो जब टाइम मिलेगा तब आएंगे, ऐसा हो सकता था. और ग्रुप के जरिए हम सब आने लगे एक साथ.
एक साथ आने लगे। उमेश कंटिन्यूसली काम कर रहा था, मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा था, सभी अपने अपनी जगह कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, पर ग्रोथ नहीं समझ आ रहा था। मतलब हमेशा कुछ क्वेश्चन रहते ही थे कि यार क्या एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं हम, ये क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये सब साथ आके डिस्कशन करके करके सब डेवलप हो गया। और उसके लिए हमने वर्कशॉप स्टार्ट किए थे दृश्य भाषा नाम से। सो दृश्य भाषा नाम से वर्कशॉप स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसलिए किया कि ये हमारा ही रिवीजन हो जाए, कि हमारे ही ग्रुप का फिर से एकेडमिक रिवीजन हो जाए, और जो चीज़ें क्लास या 3-4 साल में कुछ नहीं की थी और प्रैक्टिसिंग में जब हम प्रोसेस में गए, पेंटिंग प्रोसेस में, तो वो समझ के करने का प्रयास कर रहे थे। तो वो सब समझने लगा था कि कैसे कैसे उसको फंडामेंटल्स को कैसे समझे, फंडामेंटल्स को कैसे समझना चाहिए। ये सब एकेडमिक में नहीं पता था, पर खाली फंडामेंटल्स का पार्ट ये रहता है, यही पता था। ड्राइंग अच्छा करते थे, लैंडस्केप अच्छा करते थे, पोर्ट्रेट अच्छा करते थे, कलर अच्छा लगाते थे एप्लीकेशन लेवल पे, ये सब एकेडमिक ही था। बट मेरा एक्सपीरियंस क्या है उसमें ये नहीं समझ रहा था। तो इसके लिए हम लोगों ने ये वर्कशॉप कंस्ट्रक्ट किया, और उसमें नेचर में जाके वहाँ पे स्टूडेंट को वो इंट्रोड्यूस करना कि लाइन की क्वालिटीज़ क्या है, उनका इन्फ्लुएंस आपको कैसे होता है, मतलब उनका प्रभाव कैसे होता है आपके ऊपर, आप ये कहाँ पे देखते हो, और ये रिपीट आपके काम में कैसे आता है, ऐसे बारे में सब डिस्कशन होते रहते थे। और फर्स्ट टाइम वर्कशॉप किया, सक्सेसफुल हुआ। देन 2-3 वर्कशॉप किए, और भी आगे जाके फिर हम लोग का काम तो चालू ही था, हम काम कर रहे थे, शोज कर रहे थे। इसमें से ग्रुप बड़ा हो गया, धीरे धीरे काम करते करते अभी हम ये स्टेज पे है। सो अभी मेरे पेंटिंग की प्रोसेस के बारे में बताता हूँ, बाद में गणेश बताएंगे। सो मैं एकेडमिक से ही स्टार्ट करूंगा। एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एकेडमिक्स में मैं लैंडस्केप बहुत ज़्यादा करता था, लैंडस्केप पोर्ट्रेट्स रहते थे। मेरा पहला लैंडस्केप यही गैलरी से सोल्ड आउट हुआ था, फाउंडेशन कोर्स में था तब, तो उससे थोड़ा सा इंस्पायर होके फिर लैंडस्केप सब लैंडस्केप। बट लैंडस्केप पेंटिंग की तरफ कैसे जा सकता है, ये सब चीज़ें एकेडमिक के बाद समझ में आई कि मैंने मेरा खुद का रिसर्च चालू किया कि फंडामेंटल्स बात करते हैं हम, इसमें भी फंडामेंटल्स है, हर एक पेंटिंग में फंडामेंटल रहता है। बट फंडामेंटल समझना कैसे समझ सकते हैं उसको। सो मैंने लाइन से स्टार्ट किया। मुझे ज़्यादा मतलब मेरा जो चीज़ है फंडामेंटल में, वो मुझे लाइन में समझ में आया। तो फिर मैं लाइन को लेके 2-3 साल लाइन को लेके काम किया, और लाइन वाइब्रेशन, लाइन का स्टैटिकनेस, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की काम करते करते। और मैं बिलोंग करता हूँ फार्मर फैमिली से। सो और बहुत सा पीरियड मेरा गांव में गया है, मैंने खुद खेतीबाड़ी की है, और ये सब चीज़ें मेरे काम में आने लगी। कुछ चीज़ें जैसे हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बातें करते हो, वैसे ही वो चीज़ों का किधर तो एक प्रभाव था मेरे ऊपर। तो वो चीज़ें मेरा कॉन्शियस माइंड डिनाई करने लगा उधर पेंटिंग में। सो वो करते करते धीरे धीरे पेंटिंग प्रोसेस में मेरा सर्वाइविंग है, वो पेंटिंग प्रोसेस में एब्स्ट्रैक्शन को लेके आया। जैसे
मैं रात की पहरेदारी कर रहा हूँ खेतों में, तो ब्लैक, इन जनरल ब्लैक देखते हैं हम, बट ब्लैक एक्सपीरियंस करना है तो वो बहुत अलग चीज है। मतलब चांद की रोशनी का ब्लैक अलग है और पैक रूम का ब्लैकनेस अलग है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक के शेड्स है। सुबह का फॉगी इफेक्ट जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, वो सब चीजें मेरे विजुअल को किधर तो इम्प्रूव कर रही थी। और धीरे धीरे ये सब चीजें समझ के अभी भी मैं समझ के ये काम कर रहा हूँ जो मेरे एक्सप्रेशन है। तो कुछ वर्क्स रहेंगे मेरे। Allowed. मोठं करायचं ये कुछ वर्क है मेरा। ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस से मैंने एंजॉय किया है, बट विजुअल लेवल पे वो मेरे सर्वाइविंग का पार्ट है। मतलब कुछ एक्सपीरियंस, विजुअल एक्सपीरियंस मिल रहा है हम यहाँ पे। हाँ, कुछ इमेजेस है। लेडी फिंगर का जो पौधा रहता है और वो सूखने के बाद हमारे खेती में जो दो खेतों के बीच में एक ट्रैक रहता है, उसके ऊपर ये सब लगाते हैं हम लोग। तो वो जैसे कटिंग हो गया तो फिर धूप चालू होता है बहुत, तो फिर जो भी रह गया है वो सूख जाता है। तो उसका फोटोग्राफ करके, उसका प्रिंट करके मैंने लाइन फॉर्म में वो उसको एब्स्ट्रैक्शन में ट्रांसफॉर्म करने का ट्राई किया। ये मतलब एक चीज है, अभी हमारा जैसे टॉपिक है कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। सो हम बचपन में ना जो है वो देखते हैं, और जब हम कुछ एकेडमिक करके आते हैं, कुछ पढ़ते हैं, किसका सुनते हैं, कुछ ये सब चीजें करने के बाद हम हमारा विजुअल है वो उसी के इम्पैक्ट से आने लगता है। सो उसके बारे में, और एक वीडियो है मेरा, मैं एक गांव में घूम रहा था, तो उधर वीडियो मोठा दिसेल ना? हाँ, ये मेरी लड़की है और ये मेरे भाई। सो वो उनको जो लाइन्स है, जो गांव में जो एक बाज रहता है सोने के लिए, सो वो जस्ट उनको वो लाइन दिखा और उन्होंने लाइन ही किया, इसके ऊपर कुछ चीजें करने की उन्होंने ट्राई नहीं की।
जो दिखा वो किया, क्योंकि वो किसी उस टाइम वो कोई प्रभाव में नहीं रहते थे, इन्फ्लुएंस में नहीं रहते थे, जो है वो देखते हैं। सो और पेंटिंग में यही चीज एंड तक एक्सपीरियंस करने का या उसका अनुभव करने का ट्राई हम कर रहे हैं प्रोसेस में, कि जो है वो जैसे है वैसा महसूस करना, वो चीज के रिसर्च में हम है। रिसर्च में बोलने से अच्छा वो प्योर होना वो ढूंढ रहे हैं। सो वो किधर भी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल नहीं, जो है वो लाइन ही फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये प्लान करके किया नहीं है, नेचुरली वो लोग कर रहे थे। वो नेचुरली कर रहे हैं और मेरे दिमाग में आइडिया मतलब आया कि ये कुछ अलग है, सो उसको वीडियो किया मैंने। इसको अलग करके पहचानना भी एक कला है। अदरवाइज वी सी इट एज क्या कर रहे बच्चे। हाँ। यही है मेरा खेती बाड़ी का सब काम। और ये एक पेंटिंग है, बहुत छोटा है वो, मतलब दिख नहीं रहा है अच्छे से, और जो है मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे विजुअल का एक्सपीरियंस है। नहीं होता है, हाँ इंस्टाग्राम पे नहीं होता है। But that's the- सो बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल को बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने ये एक वीडियो है मेरे गांव का, जो कलर मिक्सिंग, मूविंग, फॉर्म एक्सपेंस होना, ये हमारे यहाँ जो चीजें बनाते हैं शादी के टाइम में, वो हाथ से बना के लाइक ये कलर मिक्सिंग अंदर होता है। तो ये सब मुझे प्रोसेस एब्स्ट्रक्शन की तरफ एंजॉय करने वाली चीजें थी, और वही मेरा पेंटिंग है। पर्टिकुलर एक पेंटिंग का सब्जेक्ट नहीं मैं बता सकता, या कोई भी एब्स्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर एक पेंटिंग का मीनिंग नहीं बता सकता। इट्स ऑल अबाउट लाइफ, जो एंजॉय किया है, जो देखा है, जो सुना है, वही चीजें हम वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। सो ये मेरा जर्नी है मेरे पेंटिंग प्रोसेस का। So इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ जो माइंड में चल रहा है that comes on the canvas at the end. Android. That was So lovely. आता गणेश Yes. वो कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसलिए, वरना कुछ खास जरूरी तो होता नहीं है इतने छोटे रूम में। ओके, तो मेरा नाम गणेश है। मैं भी सूर्या ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का मेंबर हूँ, और हम लोग फाउंडेशन से लेकर शायद एलिमेंट्री से लेकर जीडी आर्ट तक साथ में थे। तो तब से लेकर अब तक का ये पूरा ट्रैवल है, जर्नी है हमारा साथ में। और इसमें इंडिविजुअली हम लोग काम कर रहे थे, जैसे योगेश ने बताया। और ऐसा होता है कि हर एक का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, वैसा मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। तो मैं भी कोकण साइड से बिलोंग करता हूँ। टिपिकली कोकण मतलब मालवन वगैरह वो एरिया है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बचपन से आना जाना होता है गांव में। तो नॉर्मली हम लोग छुट्टियों में जाते हैं या फेस्टिवल्स में जाते हैं। तो ऐसे फेस्टिवल हमारे यहाँ पे गणपति फेस्टिवल बहुत धूमधाम से ज़ोरों से मनाया जाता है। और ऐसे में होता है कि फेस्टिवल का एक अपना अपना हर एक एरिया का अपना अपना एक तरीका होता है मनाने का। तो गणपति फेस्टिवल में क्या होता था कि बहुत सारे कलर देखने मिलते थे, और वो फेस्टिवल कब आता था कब जाता था वो पता नहीं चलता था। बट इसमें कुछ अगर माइंड में
कुछ बातें रहती थी, वो ऐसे था कि गणेश जी की मूर्ति वो इतनी वाइब्रेंट होती थी, कलरफुल होती थी। फिर पूरा घर जो एक टिपिकल घर होता था, तो वो पूरा कलरफुल होता था। जैसे पताके रहते थे वो लगाते थे, फिर रंग रंगोटी करते थे घर को, पूरी वॉल वगैरह पेंटिंग करने से लेकर सब कुछ नया। मतलब पूरे साल में ऐसा कुछ नहीं होता था, बट वो एक टिपिकल टाइम पीरियड में करना पड़ता था और वो करते थे लोग। तो उसमें कोकण में मतलब जो इसका पार्ट है, साउथ कोकण का जो नीचे वाला पार्ट, वहाँ पे गणपति मतलब दिवाली रहता है, मतलब मतलब जो दिवाली में लड्डू बनाते हैं, चकली बनाते हैं, गंजे वगैरह जो हम खाते हैं यहाँ पे, वहाँ पे दिवाली में मतलब बच्चे पटाखे वगैरह भी गणपति में फोड़ते हैं। वहाँ पे सिर्फ दिवाली में सिर्फ नहाते, बस बाकी कुछ नहीं। इतना साउथ मतलब इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे गणपति का इतना बहुत मतलब बहुत जोर शोर से। तो फिर हर एक घर में गणपति होते थे, तो रोज आरतियाँ होती थी, रोज हर एक घर में जाना है। और इसमें वही बात है कि फेस्टिवल में हमारे घर पे रिलेटिव्स आते हैं, तो बड़े सज धज के आते थे, कलरफुल सब। वो कलर इतने प्यारे सुहाने लगते थे कि ये सेम माहौल मेरा 82 का बॉर्न है, तो मुंबई में भी उस पीरियड में ऐसा ही माहौल होता था। ज़्यादा करके लोग महाराष्ट्रियंस थे, तो वो जो वहाँ नहीं जा पाते थे, तो यहाँ पे भी फेस्टिवल ऐसे ही होता था। तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता था, बट फिर भी मुंबई में अगर कोई नहीं जा पाए तो फिर वो फेस्टिवल यहाँ पे एंजॉय करते थे। और यहाँ पे भी फिर वही कलरफुल माहौल होता था, सब कुछ वही। फिर गणपति के लिए बैकग्राउंड करो या क्या करो, तो ये सब ऐसे माहौल में हम पले बढ़े और गाँव जाना आना होता था, इसलिए कलर मेरे लिए इतना फैसिनेटिंग है। फिर जैसे जैसे मैंने GD आर्ट कंप्लीट किया, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 2 साल के लिए। मैं AJS के अबुजानी संदीप खोसला जो फैशन डिज़ाइनर है, उनके फर्म में काम करता था। अब वहाँ पे इंटीरियर फील्ड में मुझे आर्टिस्ट का जॉब मिला था, तो मैं म्यूरल करता था। और वहाँ पे जो अबू सर है और संदीप सर है, उसमें अबू सर है, उनको बहुत ब्राइट कलर के काम पसंद होते थे। और फर्स्ट विजिट में मैं उनके ऑफिस में गया था, तो उनके चेयर के पीछे एक बड़ा सा एक इंस्टॉलेशन था, जो रील्स होते, रेशम के धागे होते उसके, और वो सारे ऐसे सीक्वेंस वाइज ग्रेडेशन वाइज लगे हुए थे। तो वो जो पिक्चर है, वो सिनेरियो अभी भी मेरे माइंड में है, अब तक मैं भूला नहीं। अभी इस चीज़ को कम से कम 10-12 साल हो गए, तो वो इतना फैसिनेटिंग था मेरे लिए। तो ऐसी चीज़ें होती है, हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव होता है हमारे ऊपर। और इस वजह से अगर आप मेरे पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें वाइब्रेंसी या ब्राइट कलर बहुत है। और वो होने का कारण यही है कि मैं चीज़ों को भी इतना ब्राइटली, जब भी वो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती है, और वो उसका जो इम्प्रेशन है वो पेंटिंग में वैसा ही आता है। ये एक चीज़ है। कोई पर्टिकुलर ऐसा कलर है जिसमें ज्यादा इंटेंसिटी या वाइब्रेशन फील होती है? नॉर्मली जो एक्चुअल जो प्योर कलर्स है, रेड है, येलो है, तो वो शेड्स पेंटिंग में आते ही है। और फिर पैरेलली जो बाकी सारे शेड्स है जो सपोर्टिव हो सकते हैं उस टाइम पे कंपोजिशंस में, तो वो कंपोजिशंस में कलर पर्सपेक्टिव के लेवल पे आते हैं। और वहाँ पे फिर कलर पर्सपेक्टिव मैंने इसलिए यूज़ किया वर्ड, क्योंकि फिर जब हम कंपोजिशंस करते हैं ना, तो एक वो बेसिक सबको ही पता होता है कि कलर पर्सपेक्टिव, जैसे हम लोग ने सिग्नल के बारे में बहुत सोच के उसको रेड, येलो और ग्रीन वैसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो साइंटिफिकली भी वो ऐसे ही है वो। तो ये, हाँ, तो मैं कुछ मेरे काम्स दिखाता हूँ। शायद यहाँ पे ये थोड़े से कलर जो है आपको अलग लगे, बट एक्चुअल में ये बहुत ब्राइट है, वाइब्रेंट है कलर। और मेरे प्रोसेस में पेंटिंग के मैं इम्प्रेशन लेता हूँ। जैसे कुछ मटेरियल होता है, डिफरेंट मटेरियल से, तो मैं शुरुआत के टाइम पे काइट पेपर से काम करता था। तो पेपर के ऊपर काइट पेपर का इम्प्रेशन लेता था, तो वो उसके कलर उसके ऊपर ट्रांसफर होते थे।
और एक ट्रांसपेरेंट इमेज तैयार होती थी। सपोज मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्म स्पेस पे चाहिए, तो वो स्पेस पे वो कट करके नेचुरली, नॉट विद द सीजर, कट करके फिर उसके एजेस भी बहुत नेचुरल आते हैं, जैसा वो फॉर्म हो वैसे। फिर वो जब भी ट्रांसफर होते हैं तो सारे वो पेपर वो एब्जॉर्ब करता है और वो कलर छोड़ देता है, और ऐसे फिर उसके ऊपर फिर कोई कलर प्रोसेस है, वो करते 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 वो काम जहाँ पे मुझे रुकना है वहाँ पे वो काम रुक जाता है, और फिर एक कोई एक विजुअल क्रिएट हो जाता है कलर लेवल पे, और फिर वो मेरे लिए पेंटिंग होता है नॉर्मली। ऐसे ये प्रोसेस में नॉर्मली मैं काम करता हूँ। तो कहीं कहीं पे वो मिक्स मीडिया भी होता है। ये तो अब यहाँ पे ये सारे पेपर ही है और बैकग्राउंड में कलर है। तो इसमें भी एक प्रोसेस है कि फॉर्म है, वो फॉर्म जब भी सबटली पूरे सरफेस पे आते हैं तो उसमें कहीं पे वो कुछ ट्रांसपेरेंट लगते हैं और कहीं पे वो वैनिश हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, इतने लेवल पे वो काम हो जाता है। फिर ओवरलैपिंग करते 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 कुछ टोन अपने आप क्रिएट होते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे वो डेप्थ क्रिएट होने के बाद ऐसे लगने लगता है कि ये हो रहा है नेचुरली। तो फिर ये ऐसे नेचुरली हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, तो कहाँ तक वो हम मुझे करना चाहिए। तो फिर एक विजुअली वो प्रेजेंटेशन जो है पेंटिंग का, वो मुझे जब तक भाता नहीं तब तक वो काम चलते रहता है, और फिर वहाँ पे कहीं पे वो स्टॉप होके फिर वो मेरे लिए पेंटिंग होता है ऐसे। That's wonderful. सो Oh, wow. ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैलेट में हुए हैं। तो स्पेसिफिक एक कोई पैलेट मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक कलर सरफेस पे आए और वहाँ से स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे आपको लिंक मिलते जाती है, वो सोर्स भी मिलते जाता है। Right. और जब ऐसे होता है ना तो अपने उसको आप आपको follow, हाँ। जो कलर आपके सरफेस के ऊपर या पेंटिंग के ऊपर आने चाहिए वो भी वो नेचुरली एक माइंड में काम चलते रहता है कि फिर यहाँ पे अभी कौन सी टोनल वैल्यू पे काम होगा और कैसे होगा। और इसके लिए बोला कि कोई एक स्पेसिफिक पैलेट में फॉलो नहीं करता। तो इस बिल्ड तरह हो रहा है, मतलब जैसे जैसे हो रहा है, you're going with the flow, वो वहीं बिल्ड हो रहा है। हाँ। Basically. हाँ। That's lovely. और तो गावचा व्हिडिओ आहे ना, तो फुलांचा आहे, वाहत चालली आहेत रेड हो, कलरची. ते फेसबुकवरती बघा, एक व्हिडिओ है उसकी छोटी सी स्टोरी है। जिसमें नदी है, तो नदी में कैसे है कि रात में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता इतना, मतलब एकदम नॉर्मली जैसे वो बहती है नदी, और मॉर्निंग में उसका जो प्रवाह है या फ्लो है वो बहुत स्पीडीली और बहुत ही ऐसे रनिंग वे में बहुत ही स्पीड में होता है। तो कुछ वहाँ पे ना नदी में फ्लावर्स गिरते हैं, और वो रात तक वैसे ही रहते हैं। और जैसे फिर मॉर्निंग होती है तो जैसे नदी का प्रवाह अपने आप जैसे शुरू होता है। हाँ, वीडियो है ना। हाँ, वो साउंड आएगा तो वॉल्यूम थोड़ा वाढवा. Oh, so beautiful. वाव. कमी येणार. हाँ मोठा दोष तुला नव्याने लावलं कसं करतो ये जो रेड है ना, ये इसके पेंटिंग में काफी, मतलब काफी पेंटिंग में रेड
उसका डोमिनेंट रहा है, शायद वो रेड यहाँ से आया है। मुझे मेरा पर्सनली टेक ऑफ हो रहा है। मुझे वो बार कभी बहुत सारे टाइम पे ऐसे मन में सवाल आता है कि फिर ये इनका जर्नी कहाँ तक होगा, ये कहाँ बह के जाएगी. हे जो सगळं पाण्यामध्ये जे फुलांचं इफेक्ट आहे ना, जे पेंटिंग मध्ये पण दिसतं. अच्छा. जवळ ऍप्लिकेशन तरी आपको ब्लर आहे ते एवढे रेड आहेत ना ती फुलं सुंदर. आणि एक्चुअली ये जो साउंड है बर्ड्स के, वो भी आप एंजॉय कर सकते हो अगर आप विजिट करोगे फेसबुक अकाउंट पे, तो ये वीडियो आपको देखने मिलेगा. तो साउंड है, विजुअल है, ऐसे बहुत सारे पूरा रेड वहां तक भरा हुआ है. पूरा. वाव. तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो आपके माइंड में काम करती रहती है, और इससे ही कुछ ऐसे विजुअल सेंसेस डेवलप होते हैं और वो फिर आपके पेंटिंग में आते हैं. सो इंटरेस्टिंग बात ये है कि व्हेन योर बैकग्राउंड इज रिचर, जब हम ये सारी चीजें कलेक्ट करते हैं तब महत्व बनता है टू ब्रिंग इट हर एक बैक. का Yes. मतलब हम किससे ज्यादा इंस्पायर होते तो वो नेचर ही है. राइट उसमें राइट. इतना है तो हम उसका पार्ट है तो वो ऑटोमेटिकली हम से आएगा ही. Right. तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है दैट आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स गेट इंटरेस्टेड इन स्लो लाइफ ऑब्जर्विंग. जैसे चिड़िया का आवाज भी इंटरेस्टिंग लगता है. डार्क रूम का ब्लैक की बात किया हमने, और हमने खेती का ब्लैक के बारे में बात किया. ये एक्सपीरियंस डू ऑल ऑफ अस हैव इट? आई डोंट थिंक सो. सो आई थिंक देयर इज अ चेज. वो कुछ एक्सपीरियंस हमें बुलाता है, यू नो, देयर इज अ चेज. तो जैसे ऑफ कोर्स बैकग्राउंड है करके यू हैव एन एक्सपोजर टू अ खेती, गांव में आना जाना होता है, ये वो. पर मुझे लगता है कि उसमें भी देयर इज अ कनेक्शन, यू नो, लाइक नॉट एवरीबडी टेक्स दैट एफर्ट टू गो आउट, सिट इन दैट पीस, ऑब्जर्व दैट. वो हमें यहाँ पे बीच पे भी मिल सकता है जो हमें ऑब्जर्व करना है कुछ है तो. पर वो चांस अभी के जिंदगी में फास्ट लाइफ में नहीं है. एंड देयरफॉर सारे जो डिजाइन स्टूडेंट है वो भी आधे से ऊपर घाई में रहते हैं और फिर बोलते हैं ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया. डिजाइन में ब्लैंक कौन होता है? बट देन दिस इज द क्राइसिस ऑफ टुडेज टाइम. सो आई थिंक द easier we take, the easier it comes. जैसा हम चाहेंगे वैसा फिर होगा. So this is also mood, you know, something which we develop within. So is this mood and everything controllable? क्या इस पे हमारा कुछ कंट्रोल है? नहीं, कंट्रोल तो नहीं है, बट जब टेक्निकल बातें में हम जाते हैं Yeah. तो वहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल रहना पड़ता है, क्योंकि विजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट करते वक्त मीडियम है. सो मीडियम की पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज जो भी है वो चीजें मैटर करती है आपका विजुअल इम्पैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, एनरिच करने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. वहाँ को ही अपने को कंट्रोल करना पड़ता है. हाँ मीडिया है इसलिए राइट. मन होता तो हाँ तो नहीं बाहर निकाल रहे तो उसको कंट्रोल करना है. स्पेस है. हम बात कर रहे बहुत से अच्छी, सामने वालों को दिखा तो क्या दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते. तो जो भी Yeah. चीजें है वो प्रैक्टिकल जब कृति करते हैं तो फिर उसके बाद कलाकृति बनती है जो भी. राइट. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जो भी हम क्रिएट करते हैं वो, क्या आपको ऐसा फील हुआ है कभी दैट इट्स ऑलरेडी देयर, सब कुछ है, हाँ सब हाँ, कुछ है? ये yes. पेंटिंग बनने वाली थी, उससे पहले पेंटिंग देख Yes. चुके हैं हम कि पेंटिंग क्या बनने वाली थी. मैंने कि ये कहाँ तो है, ये मेरे पास है, ये कहाँ तो है, ये फीलिंग हाँ. जरूर है. हाँ. हम इतने देखते हैं और इतनी यही- चीजें देखते हैं ना, तो यहाँ कहीं रुक जाता है हाँ. और रिकॉल होता है कभी, राइट. और करते करते रिकॉल हो जाता है. हाँ. हमें पता भी नहीं था वो कैसा है. राइट. ऐसे भी मोड आ जाता है. और उस वक्त अरे मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था, तो बाद में काम होने के बाद ही एक्सपीरियंस हुआ. राइट. तो- करते करते बीच में समझ में हम आता है. बहुत सारी चीज यहाँ इकट्ठे रख देते हैं, राइट. राइट. तो वो तो है. और थोड़ा ऑटो फील आता है कि कभी कर रहे हैं बट वी हैव लेफ्ट आवरसेल्व्स एज सो लूज, जस्ट एज अ चैनल. हाँ, तो सर देखो एब्स्ट्रैक्ट ऐसा बात है
सर्च छोड़ना है, हम्म, उसको पकड़ के नहीं रखना है, हाँ वो एक्सपीरियंस अलग होता है। कभी कभी मतलब टेक्निक की वजह से हो रहा है पेंटिंग, होने दीजिए, मतलब ऐसे नहीं कह रहे उसके पीछे कुछ थॉट ही नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपकी आदत रहती है इसके लिए आप करते हो पेंटिंग, ऐसे भी होता है। और कभी कभी फिर 1 महीने तक पेंटिंग नहीं होता और फिर बाद में ऐसे पेंटिंग होता है कि अरे नहीं अभी तो करना ही है, ऐसे भी होता है। तो हाँ। दोनों टाइप में होता है, या तो आपको पेंटिंग करना है इसलिए आप करते हो पेंटिंग, और कभी कभी तो ठीक है अभी आदत हो गई यार बहुत, और कंटाल आ गया अभी क्या करूं, पेंटिंग नहीं किया है, 2 हफ्ते हो गए, तो भी आप पेंटिंग करने के लिए बैठते हो और वो आ जाता है। राइट हाँ। हर एक पेंटिंग का जन्म जो खुद वो मांग लेता है कि उसके पीछे क्या एग्जैक्टली Read- जब उसे आना होता है तभी वो पुश करके वो आ जाता है। यस इट कम्स आउट। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम ऐसी बातें कर सकते हैं। अगर यही बातें मैंने अगर किसी डॉक्टर से करी तो वो कहेंगे क्या क्या ये ब्लैक अलग वो ब्लैक अलग, तुम्हें हो क्या गया है, यू नो। आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हाँ, जब जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे भी या यू नीड दिस यू नीड दैट। सो या इट्स क्रेजी, मतलब एक्सप्रेसिव रहना इज आवर नॉट जस्ट पैशन बट उसकी वजह से हम जो है वो है। द एक्सप्रेशन इज व्हाट मेक्स अस व्हाट वी आर एंड देयर इज डिसबिलीफ इन एक्सप्रेशन। जब कॉर्पोरेट्स में जाते हैं और अगर तुमने कुछ भावुक होके कह दिया तो कहेंगे यू आर नॉट प्रोफेशनल इनफ। What the shit? I'm here because I'm expressive. I am who I am because I'm expressive. कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है लेफ्ट ब्रेनर्स एंड राइट ब्रेनर्स के बीच में का मेल ही नहीं है, इतना डिस्कनेक्ट है। बट दैट्स हाउ लाइफ इज। आर्टिस्ट है, देखो एब्स्ट्रैक्ट, इन लोग एब्स्ट्रैक्ट में सब ग्रुप सब वही सब एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। राइट। मेरे हिसाब से इनसे मैं कनेक्ट बहुत हाँ, बहुत स्कूल कॉलेज टाइम से। ये कॉलेज में जो तभी शायद अभी मैं बोले कि मैं आपको फॉलो कर रहा हाँ हाँ फिर एक शो में हम लोग इकट्ठे मिले, तभी हम लोग पर्सन में हाँ। 17-18 में आपको मोटे म्यूजियम लगा, म्यूजियम शो लगा। हाँ म्यूजियम तो मैं इनसे इनके काम से जितने ग्रुप है उन सबसे मैं फैन हूँ। तो मैं जिधर भी वो मुझे कुछ ऐसे भी बातें उनसे करता हूँ कि इससे बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता तो है। काम करना, क्योंकि ग्रुप जो है उसमें जो कंसिस्टेंसी है, जो भी करते हैं तो उन लोग करते आ रहे हैं, राइट। तो वो जो करना है इम्पोर्टेंट है। वो एक थॉट लेके काम करके उसको आगे लेके जाना है, एक समाज को रखना है उसके सामने प्लेटफॉर्म पे, तो उन लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो एक उनके प्रति एक प्रेम है। तो और ये ग्रुप है करके और सपोर्ट मिलता है। इज इट ट्रू? बिल्कुल। एक फायदा ऐसे होता है कि हाँ। जब भी हम कहीं जा रहे हैं एग्जीबिशन में, तो ये तुझे कैसे दिखता है, तो वहाँ पे उसके Discussion थॉट है हो ना, सकता है। वो भी आप ड्राफ्ट करते हो या Yes. उसके बारे में सुनते हो। Yes. जैसे मैं यहाँ पे पहले आया तो पहले इम्प्रेशन इसको लेकर, आपके काम को लेकर, मुझे ना ये स्कल्पचर की तरह दिखता है। मतलब अगर इसका स्कल्पचर करे ना, इसकी राउंडिटी अभी मुझे इसमें फील हो रही है। फील हो जाता है। हाँ, तो ये मुझे स्कल्पचर दिखते हैं, तो शायद ये मेरा परसेप्शन होगा, बट ये एक मेरा देखने का तरीका है, इसके लिए मुझे वो वैसे दिखता है। Right. तो ऐसे, तो जैसे हम मिलते थे ना, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये ऐसा है, ये इस तरह है, तो वो भी होना जरूरी है। और झगड़े भी होते थे, झगड़े बहुत होते थे। Okay. ऐसा है ही नहीं, तू क्या बात कर रहा है, ऐसे Okay. नहीं होता है, तू गलत बात कर रहा है, ऐसे झगड़े भी होते थे, बहुत झगड़े होते थे। मतलब अपनी बात सबको अपने तरीके से रखनी है हाँ रखनी है। और अपने तरीके से समझानी है, हाँ तो वो समझाने में और बहुत बातें समझ में आती है। हाँ। तो यही था डिस्कशन कर रहा था। हाँ Lovely. And सबके कामों के बीच में कोई ओवरलैप्स नजर आते हैं? Any influence of each other reflecting in work? हाँ, हो सकता है, होता है, एक साथ रहते हैं, सब रहते हैं। एक साथ काम करते हैं, तो माइनरली थोड़ा हम थोड़ा अपने स्टूडियो में करते हैं। हाँ, पहले। माइनरली पता ही नहीं देखते रहता है रहते हैं एक दूसरे का थॉट विजुअल। एक्सचेंज करना है, हाँ इमेज देखना है सबका, हाँ पेंटिंग देखना है, तो फिर वो थोड़ा तो हो जाता है। हाँ थोड़ा बहुत और हो कभी जाता कभी है। ऐसा नहीं होता, हम लोग स्टूडेंट लेवल पे किसी के तो हम लोग इमिटेट करते हैं सीनियर्स का, तो वो फेज में से भी बाहर आ जाता है। Right. लेकिन
हमको वो स्टेज में जाने के लिए कोई तो हमको एक स्टेप पे जाना है, तो वो हमको उसके गाइड लिए है, कुछ उसके लिए चाहिए। कोई चाहिए। तो एक सीनियर आर्टिस्ट को हम फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं कि उसको लाइफ टाइम कैरी करो, लेकिन हम होता ही है। Yes. Influence of anything from the environment आ जाता है. वो मसल में एंजॉय कर लेता है, कोई अभी रिसेंट रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, कोई उसको लेके कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि, लेकिन करता है जरूरी है, एक कुछ भी नहीं छोड़ेगा, Right. कुछ ना कुछ करेगा ही उसमें से। एक्चुअली ये जो कोई वैसा norm आर्टिस्ट है, करेगा, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश है सभी जगह पे, तो उनमें से हम क्या ले रहे हैं, Correct. अलग अलग पर्सन Yes. अलग अलग चीजें लेते हैं, उसके ऊपर Build होता है. हाँ. बिल्ड होती है। Right. तो वही है, एस्टेब्लिश सब जगह पे है, आपको क्या लेना है क्या करना है उसमें से वो आपके ऊपर डिपेंड। True. तो हमारे टाइम में मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट को सुनने को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें मिली, तो हम लोग ने जॉन सर का भी डेमो देखा हुआ है हाँ. और फिर कोलते सर को भी सुना हुआ है। तो एट ए टाइम फिगरेशन में काम कर रहे हैं, चाहे एब्स्ट्रैक्ट थॉट को लेकर काम कर रहे हैं, उन सबको सुन रहे हैं, तो शायद वहाँ पे भी बहुत उसका फायदा होता है कि हम लोग कितने सीनियर्स को रेगुलरली सुनते हैं, कितना जाकर उनको मिलते हैं, तो वहाँ पे फिर एक फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं किसी बात को लेकर। तो वो फॉर्म डिसीजन के लिए वो क्या कहते हैं और हम उससे क्या मतलब वहाँ से हम लोग क्या निकाल कर हमारे मतलब लिए एक opportunity प्रोसेस में जब होते हैं ना, तो अलग आर्ट फील्ड से कनेक्टेड जो भी स्टूडेंट है या प्रैक्टिसिंग है, उनकी एक लैंग्वेज डेवलप होने लगती है कन्वर्सेशन का। उनका लैंग्वेज कभी भी एकांत में मिले और बात कर रहे तो तेरे घर में क्या चल रहा है, वो कभी भी नहीं रहता है। उनका लैंग्वेज का एक तरीका ही अलग रहता है, तो वो ये प्रोसेस में ही डेवलप होने लगता है। एक्चुअली हम ये सब कॉलेज चीजें टाइम में थे, तभी लास्ट ईयर में ऐसे हो गया था कि जो सर पेंटिंग सिखाते थे उनको पोर्ट्रेट दिया गया हमें सिखाने के लिए, जो पोर्ट्रेट सिखाते थे उन्हें पेंटिंग दिया गया। एक्सपेरिमेंट। हाँ राइट। तो वो सर ने हमारा पूरा मतलब तभी कैसे पोर्ट्रेट बनाता है, मतलब क्या जबरदस्त काम करता है, है ही वो है, लेकिन हर एक का वही चाह होता है ना कि मैं बहुत अच्छे से ड्राइंग बनाऊं, बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट बनाऊं। तो हर एक चेहरा लेके बैठा था ऐसे ऐसे 0 नंबर का ब्रश लेके इसमें डिटेल करते रहता। तो सर ने वो सब हटा दिया। वो बोले क्या कर रहे हो तुम, सिर्फ चेहरा बनाना और बाकी फिगर करना वो इम्पोर्टेंट नहीं, आप पूरा स्क्वायर जो रेक्टेंगल है पेंटिंग उसका तब आप विचार करोगे वगैरह। तो फिर बाद में वो पता चला कि हाँ पेंटिंग करना मतलब पूरे जो भी हमारा सरफेस है उससे न्याय देना है। तो फिर वो सब चला गया, सब ऐसे ऐसे करके फिर बड़ा बड़ा ब्रश लेके सब पूरा भरने लगे। फिर मॉन्टिग्लियानी मतलब ऐसे सब हेनरी मूर वगैरह सब ऐसे उतर के आ गए ना, इम्प्रेशनिस्ट। पोर्ट्रेट ही बदल के आ रही था। उन्होंने क्या किया, जब उनको मालूम पड़ा अभी ये इनकी गाड़ी छूट तो उन्होंने अगेंस्ट लाइट पोर्ट्रेट बिठाया। Okay. तो पीछे से लाइट आ रही है, Okay. तो पोर्ट्रेट पूरा ब्लैक दिख रहा है, तो उसमें ढूंढे कौन सा कलर और बाद में तो और टेरेस के ऊपर पोर्ट्रेट बिठाया, तो लाइट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मिनट पे चेंज हो रही है ना, लाइट यहाँ से यहाँ तक। तो हमें तो वो समझ में नहीं रहा कि लाइट क्या डाले। महसूस करना, पेंटिंग महसूस करना, ये एकेडमिक में इस तरीके से हमने सीखा, एंजॉय किया। मतलब अभी तो ठीक है, अभी अपने पास आईफोन या फोन है, फोन में म्यूजिक लगाते हैं। तभी तो 2006-7 में तो सीडी प्लेयर था, लेकिन हर एक कोई यूज नहीं करता था, सब खुद लेके आए। उनके पास थी फिर मेहंदी हसन, ये वो बड़े गुलाम अली, खुद की सीडीज लेके आप लगाओ, सुनो और पोर्ट्रेट करो। ये एक्सपीरियंस देने वाले वो सर थे, तो वो फिर अलग ही लेवल का सब पेंटिंग होने लगा। फिर जो एक बार मतलब बहते गए ना सब। लास्ट ईयर में कंप्लीट ऐसे पलटी हो गई और ये सब ख्याल और ग्रुप ये सब वही से स्टार्ट हुआ सब। मतलब हर कोई सर बोलते थे कि आप पिकासो देखते हो, तो पिकासो का फिर जब बाद में क्या हुआ वही देखते हो, लेकिन पिकासो के अर्ली स्टेज के पोर्ट्रेट्स देखे क्या आपने? फिर बाद में अरे हाँ चलो कर लाइए। फिर लाइब्रेरी में जाके जब पिकासो ने जो पोर्ट्रेट्स एक्चुअल किए रियलिस्टिक, वो भी अलग ही लेवल के कंपोजिशन है, प्रॉपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स है उसके, लेकिन वो भी इतने अच्छे हैं कि हमें से पिकासो वही जो एक लाइन लेके क्यूबिज्म पिकासो का हम क्यूबिज्म देखते हैं, उसके पहले का जो काम है वो इतने अलग लेवल का है। तो वो फिर बाद में देखा अच्छा पिकासो ये भी है। तो जो एकेडमिक काम है तो वो करते ही हमें जाना, मतलब पोर्ट्रेट वगैरह करते करते फिर हमें खुद को एक्सप्लोर करना है।
ना कि डायरेक्ट अच्छा चलो लाइन किया और फिर उसमें से कुछ निकाल के आ गया, राइट तो उसको फिर कुछ ना कुछ मीनिंग जोड़ दो, ऐसे नहीं होता है वो प्रॉपर उसका बहुत कुछ process है। हाँ मतलब हर कोई डायरेक्टली करते करते प्रॉपर छोटा बच्चा होके वो पूरा एक्सपीरियंस लेके वो हाँ। अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, ट्रू तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इंटरेस्टिंग उनके स्टेटमेंट भी है ना, बहुत बहुत टाइम पे वो इतने हेवी होते हैं कि वो बोलते हैं ना कि राफेल समझने के लिए मैंने 7 साल काम किया, राफेल की पेंटिंग, तो 7 साल क्या काम किया होगा उन्होंने? हम तो सिर्फ पिक्चर देख रहे हैं ना, पिक्चर पर प्लेट्स देख रहे हैं, तो उन्होंने 7 साल क्या काम किया होगा पिकासो ने? या तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। if I have to say, you have to give one message to आजकल की पीढ़ी के आर्टिस्ट लोग, तो वो क्या रहेगा? आर्टिस्ट और स्टूडेंट स्टूडेंट चलो हाँ स्टूडेंट्स काम बिल्कुल नहीं करते। मैं खुद टीचर हूँ, ठाणे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाता हूँ। 10 असाइनमेंट के अलावा उनके पास एक्स्ट्रा काम एक भी नहीं Oh my रहता God. है। ये बहुत दुख की बात है। और हम लोग में सबमिशन है, ऐसा कभी माहौल ही नहीं था। हाँ। जस्ट है सबमिशन, चलो लेके आओ 10 लैंडस्केप 20 लेके आओ सामने रखो डायरेक्ट, ये ऐसा था। अभी 10 असाइनमेंट से ज्यादा एक काम नहीं करते हैं, मतलब करते क्या है? Chasing the marks. डेवलप तो एक 10 असाइनमेंट के अलावा और नहीं रहता। ये बहुत मतलब वो रील में लगे रहते हैं, इसमें लगे रहते हैं। मार्क्स के लिए लड़ते थे सबसे कि आपने 5 ही क्यों दिए, 10 में से 5 ही क्यों दिए, हाँ। क्या कम है इसमें? अगर है कम तो बता दो, मैं जाके वापस करके आऊंगा। हाँ। इससे मुझे मार्क्स ये नहीं है। हेल्दी कॉम्पिटिशन होना है। हाँ सर 4 मार्क्स दे दो, फिनिश, मेरा सबमिशन कंप्लीट हो गया। वो नहीं। पैशन नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। खाली असाइनमेंट 10 असाइनमेंट दिया, हो गया साल पूरा। ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। फाउंडेशन क्लास Sorry to interrupt, we are running out of time. We have Yes. Would you just like to give Okay. one small line of key, what do you think about the exhibition and how much the subconscious affect you and the conscious at the same time when you're painting? Just one line. How much do you? Subconscious कितना, हाँ, overall exhibition और subconscious और conscious आपके painting में कितना effect करता है when you're doing it at the for a particular point of time? There are many things which reflects to my paintings also. Okay, and about the doodling, if we'll speak about the doodling, so it's really inspired me because in early childhood also this stage actually we enjoy, every one of us. So this is very important that you are enjoying till now. You are enjoying, but I don't know the process why you are enjoying exactly. Like you explained. But actually in your what is going on in your mind, okay, but when I see your drawings now it look very beautiful in different terms, like I can enjoy if I can enjoy all these drawings in a sculpture also. And it's very important that we all have to always work in different kind of like method techniques. So this is really beautiful for me to enjoy these paintings. Thank you. सेम ईयर मतलब These images are relating to the Henry Moore sculptures. Yeah. हाँ Oh, That form like I'll check. मैंने स्पेशली ये जो फोर्स आपने टेंशन में रखा है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में आया तभी से क्यूरियोसिटी था अंदर, तो पता नहीं क्या है, बट ये क्यों कभी नहीं रहता है ऐसा, मैम तो ऐसा करेंगे नहीं, बट ये क्या है, फिर वो धीरे धीरे समझ गए ये इस शो का पार्ट है, और फिर वो बहुत इंटरेस्टिंगली किया है। Thank you. ठीक है, we'll wrap then. Okay, thank you so much. Ideally, I would actually want you to scribble on a paper. Actually, scribble. तो हम वो बाहर चाय नाश्ता करते हुए I'll get the papers outside. Okay? Yeah. Thank you so much. Thank you so much.
हाँ काय हाँ हाँ हाँ